Not even here, हाँ. सो जी कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर आकर? हमने देखा आपने स्पीच में बताया कि लेकिन आप बताइए कि और कैसा रहा? मैं बताऊँ, आप बताएंगे. आप बताइए कैसा रहा मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे. एक्चुअली मुझे जैसे मैंने कहा, मैं आर्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आर्ट देखने का और पेंटिंग्स देखने का बहुत शौक़ है मुझे बचपन से. अम्मा से काफ़ी कुछ सीखा है. हमारे घर में बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं. और एक्चुअली भरत जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि वो गुरु हैं और योगा सिखाते हैं और बहुत जानकारी है उनकी, और स्पिरिचुअल भी बहुत रहे हैं. उनकी पेंटिंग के बारे में कम जानती थी मैं, लेकिन मुझे मालूम है कि एक नया जर्नी है उनका. एक्सप्रेसिव बहुत हैं, आर्टिस्टिक बहुत हैं, और जो बैरियर्स होते हैं वो बैरियर्स में बिलीव नहीं करते हैं और सारे बैरियर्स को तोड़ देते हैं. तो यहाँ पे जहाँ की आर्ट गैलरी में उनकी एग्जीबिशन, बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन चली है. आई वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट. आई वांट टू थैंक हिम फॉर इनवाइटिंग मी. इट्स ऑन फॉर द नेक्स्ट 4 days, I think. 5 days here, and here we are. It's beautiful. There are more than 60 paintings और अलग अलग तरह के. ये हम मोनोक्रोम सेक्शन में है, ब्लैक एंड वाइट सेक्शन, एक्रिलिक के साथ पेंट करते हैं. Then he has a beautiful section on the Aghori Babus, which are stunning, and then some very vibrant colors as well, all abstract. And I've just learnt about his process also. वो मतलब बस पेंट उठा के फेंक देते हैं कैनवस पे. कुछ पेंटिंग्स 2-3 मिनट में बन जाती हैं, कुछ में टाइम लगते हैं. So he's very inspirational. So what would you want to say about the trolling that recently happened during your baby shower and the whole photo that you shared on Instagram? You know, I really don't want to say anything क्योंकि बहुत ही ridiculous था वो. So I don't think it requires any kind of response. And it wasn't actually, I think it was because it was close to Eid and I was seen in a sari, and that was the problem that a few people had. But I don't think it really even dignifies a response. Would you want to say anything about the current A.R. Rahman situation that's going on when fans walked away from his concert in UK because he started off singing Tamil and Telugu songs and not Hindi songs? There are, every day there's a different controversy. I think what we're here for today is what we should stick to. It's a wonderful day for Dr. Thakur, and we're all here to celebrate him and to celebrate painting. And as Swara said also in her speech, it's really about being free and being expressive. He himself is a spiritual person, a religious person, and he really teaches you about how free you can be, especially when you're celebrating something like your relationship with God. And I think that's something that we should remember. Would you also want to throw colors on a canvas and be an artist, abstract artist? I've always been scared of expressing myself because I felt कि आपको artist बनने के लिए school जाना पड़ता है, and you really have to be schooled in this. But I've just learned that even Bharatji has not been to any kind of he hasn't had any kind of formal art education. So I think it's possible. I think one day maybe. I've always liked the idea of having an easel and maybe playing with it. But I think I will also have a slightly abstract, because I've never been able to paint within the lines. I think my paintings will also be abstract. And इसके अलावा इन दिनों आप अपना ध्यान कैसे रखती हैं हेल्थ का, अगर कुछ बताना चाहें तो? मैं भी योगा करती हूँ. Actually, I've been doing yoga for many years, but especially पिछले 3 महीनों में मैंने बहुत योगा किया, and I've got a lot of peace from that, a lot of फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी. तो मैं तो इनकरेज करती हूँ. सब कहते हैं कि इस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने आप का बिल्कुल रखना चाहिए, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी एक्टिव. जो कुछ आप करते थे पहले, आप अभी भी कर सकते हैं. और इन दिनों घर पे कैसा माहौल होता है, अगर आप कुछ बताना चाहें? घर में तो माहौल में तो सब बहुत ही एक्साइटेड हैं. अभी बस वेट ही कर रहे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मुझे पता नहीं कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. बहुत कुछ सीखने को होगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. I was very excited. I was looking forward to it because Bharat Thakur, जैसे हम सब जानते हैं, he is very famous and known for his holistic and yoga and everything. So it's very interesting कि जब भी कोई एक पर्सन जो अपने फील्ड में टॉप पर है और कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में डैबल करे, सो वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट ही कम्स अप विद. एंड आई थिंक द एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दैट आई कैन सी इज रियली नाइस. इनफैक्ट मेरा एक घर अभी मैंने खरीदा है, एंड आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय सम ऑफ द आर्ट फ्रॉम हियर, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू गो एंड टेल हिम द वंस आई लाइक, बिकॉज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. पेंटिंग का कितना शौक है आप, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बचपन में या स्कूल में पेंटिंग ड्राइंग अगर आप कुछ बनाना चाहें? बचपन में नहीं, पेंटिंग ड्राइंग नहीं. मेरे को याद है मिस इंडिया में ना सारी लड़कियों से हमको एक कैनवस दिया था और हमसे कहा था कि जो आप पेंटिंग कर सकते हो करो, एंड इनके जो प्रोसीड्स आएंगे वो चैरिटी में जाएंगे. तो मुझे बाकी लोगों ने तो जो बनाया वो बनाया, बट पहले मैंने सोचा मैं वो माउंटेन्स एंड पानी और बोट वो सब बनाती हूँ. बचपन में सबसे पहले वही सीखा था, बट आई लैंडेड अप मेकिंग एन ओम विच वॉज वेरी कलरफुल एंड एब्स्ट्रैक्ट. बट दैट्स ऑल आई नो अबाउट पेंटिंग. आई डोंट नो मच अबाउट पेंटिंग.
But yeah, this abstract art looks really pretty, so I think I like this kind of abstract art kind of painting. पूजा जी, इसके अलावा एक रोड सेफ्टी के ऊपर क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आप एक एक्टर हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? रोड सेफ्टी मतलब ये तो एक ऐसा सीरियस टॉपिक है, आई थिंक विच वी स्टार्ट इट विल नॉट गेट ओवर बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स वी शुड वेयर हेलमेट्स नॉट ओनली द राइडर बट ऑल्सो द पर्सन हु सिटिंग बिहाइंड द पिलियन. मैं बहुत बार देखती हूँ कि 3 से ज़्यादा लोग बाइक्स पे भी ट्रैवल करते हैं. आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट. ऑल्सो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज एब्सोल्युटली अनसेफ. आई मीन नॉट ओनली फॉर यू बट यू पुटिंग अ लॉट ऑफ अदर फैमिलीज एंड पीपल एज रिस्क, जिनकी गलती भी नहीं होगी, आप उनको भी यू नो दे विल ऑल्सो सफर फॉर नो फॉल्ट. सो इट्स अ रिक्वेस्ट इफ यू ऑल कैन जस्ट बी सेफ एंड be cautious and conscious and not drink and drive and rash mat drive कीजिए, road rules follow कीजिए and be safe and it's better to be late than to be late, so follow that. Thank you पूजा जी, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Master one journalist. पेंटिंग का ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आप बताइए कि कैसा रहा यहाँ पर आके एक्सपीरियंस, और ये सारी पेंटिंग भरत जी की अगर आप कुछ आई शेयर करना चाहें. थिंक डेफिनेटली जिस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है हमेशा सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उस चीज़ के साथ थोड़ा समय बिताया जाए. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट भरत जी gave me this opportunity. I think that, as I said, that art is a very special thing because anything that doesn't require language and doesn't require words is a truly special form of expression. Bharat ji, of course, is a very well-known guru and a teacher, and now we see this other wonderful side to his personality and his persona. And I'm quite stunned, and I really am taking in all the beautiful work. And as I said, that my special favorites are his series on the Aghoris. Did you also see a difference for our Bhaskar when she will be turning into an artist with her own abstract paintings or No. something? No? No, I can rest assure you, it is never going to happen. I don't think I have that skill at all. I can barely manage to learn my lines and do my scenes. I think I will suffice myself with that. So do you have to talk about the recent A.R. Rahman incident wherein the crowd walked away from his concert because he started singing Tamil songs and the fans were disappointed and they started shamming him and trolling him on social media? I mean, I think it's a very silly thing and a very silly kind of reaction. I think that art and especially music has no borders. It is not something that is bound by language. And if that basic thing you don't get about music, then you don't get anything about music. So then actually you don't deserve to be sitting in that hall. So it's just as well that those people left because it will be falling on deaf ears anyway. Thank you. सोना एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक रिजल्ट सामने निकल कर आया है जहाँ पर कैदियों को, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे वो मर्डरर हो, उन्हें ज़्यादा पैसे देकर खाना खिलाया जाता है. तो वही नेवी और आर्मी है वो 97 रुपीज़ में अपना सर्वाइवल करते हैं पूरे दिन का. अगर हम बजट जाने तो इस पर आपका क्या टेक है कि क्या कहना चाहेंगे? I mean, I don't think इस पर कुछ कहने की बात है यार. जो भी रूल्स हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए. अगर कुछ लोग और कहीं पर भी, चाहे वो जेल के अंदर हो या वो जेल के बाहर हो, so I think that rules must be followed and any kind of corruption in that is wrong. This is obvious. इसमें क्या बोल सकते हैं? आवाज के साथ ओके, संगीता जी का जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर आके. आपने देखा ढेरों सारी पेंटिंग को, पेंटिंग को आपने इनॉग्रेशन भी किया. सुनाई नहीं देता है ना, फिर आई नहीं, वो आपके पास सुनाई नहीं देता है. एक्सपीरियंस. हाँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया रहा. पहली बार तो ये पेंटिंग्स है या एक अनहोनी कहानी है. हर एक पेंटिंग में मुझे एक कहानी नज़र आती है जो अगर आप देखोगे तो आपको अलग कहानी नज़र आएगी, अगर मैं देखूंगी तो मुझे अलग कहानी नज़र आती है उसमें. मैं सोचती हूँ कि ये एक मिरेकल है. एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स एक मिरेकल होते हैं, तो मेरे लिए ये वही है. क्योंकि अगर आप एक पेड़ दिखा रहे हो या 10 पेड़ दिखा रहे हो, ये आपका नज़रिया, आप एब्स्ट्रैक्ट में क्या देखते हो, यही उसकी खासियत होती है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की. तो मेरे लिए ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है. मुझे एक मिस्ट्री सा लगता है हर एक पेंटिंग में, क्योंकि हर एक पेंटिंग में एक कहानी जैसी होती है. आपकी स्टोरी अलग है, इनकी स्टोरी अलग है, तो आप देखोगे तो कहोगे नहीं मुझे ये ऐसा लगता है, मगर मुझे लगता है कि ये इसमें एक जंगल है, मगर आपको लगेगा नहीं सिर्फ एक पेड़ है. तो मेरे लिए जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स है बहुत ही अमेजिंग मीडियम है, और उनके जो कलर्स हैं और जो स्ट्रोक्स हैं, उनका जो प्ले है उसमें, और जो भरत जी की इमोशंस है उसमें, उनकी आइडियाज़ है और उनके एक्सप्रेशंस है उसमें,
और एक बहुत ही ऑनेस्टी है इन पेंटिंग्स में, तो एक बहुत ऑनेस्ट फीलिंग सा नज़र आता है मुझे इसमें। और ख़ास तौर जो मैंने अघोरी बाबा की पेंटिंग्स देखी हैं अभी, वो बहुत ही फैंटास्टिक है क्योंकि एकदम रियल लगता है। मैं वही पूछ रही थी भरत जी से कि आप ये कैसे करते, तो कह रहा था चौक से जो हर एक दाढ़ी का एक एक बाल जो नज़र आ रहा है उसमें, बहुत ही मतलब दिमाग घूम गया देखकर ना, बढ़िया सा है। और ये जो उनकी मीडियम्स है और जो हाथ से करते हैं, मुझे लगता है कि हाथ से, क्योंकि मैं जब ब्लॉग लिखती हूँ तो मैं भी लिखती हूँ तो मैं हाथ से लिखती हूँ पहले, फिर टाइप करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाथ की जो एनर्जी, अपनी जो एनर्जी आती है बाहर, जो भरत जी आप हाथ से पेंट करते हैं, वो कलर स्प्लैश करते हैं और कोई ब्रशेज़ नहीं यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो अंदरूनी एनर्जी होती है हर एक इंसान की, उसमें से जो एनर्जी बाहर आती है, उसका जो कयामत, जो 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 नज़रिया आपको दिखता है, जो मैजिक जिसको कहते हैं आपको दिखता है, वो आपको नज़र आ रहा है इसमें, और मुझे भी नज़र आ रहा है इसमें एक यूनिकनेस है इन पेंटिंग्स में। तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है ये सब देखकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा संगीता जी, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर जो है कमबैक कर रही हैं और बहुत ही अच्छा भी करी। आप बताइए कि कुछ ऐसा प्लान या कुछ हम धमाकेदार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कोई एक्टर कम बैक नहीं करता है, क्योंकि वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। ये जस्ट बस आपके ऊपर है कि आपको कुछ पसंद आया तो आपने कर लिया, और आप अगर स्क्रिप्ट्स पढ़ते हो कभी कुछ अच्छा लगता है तो कर लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि कम बैक होता है। मुझे लगता है कि हमको ऐसा कुछ धमाका करते हुए देखेंगे, मतलब इन फ्यूचर, या कुछ ऐसा प्लान है आप? मैं एक्टिंग करूँ या ना करूँ, उसमें धमाका ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि हमेशा आपके बारे में बात करें, आप बहुत ही फिट और फाइन रहती हैं, तो कैसे कुछ बताना चाहेंगे आपको? मैं योगा करती हूँ, मैं बहुत सारा मेडिटेशन करती हूँ, मैं प्राणायाम्स करती हूँ। तो भरत जी से जब मैं बहुत पहले मिली थी तब मुझे भी पता चला था कि वो योगा गुरु ही हैं आप, तो मगर मैं उनसे सीखी नहीं हूँ, मगर मैं उनको जानती हूँ। और मेरे योगा गुरु मेरे पापा हैं, जिनसे मैं सीखी हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो मैं फिटनेस के तौर पे योगा करती हूँ, प्राणायाम्स करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और जिम भी करती हूँ। तो मुझे एक पैशन है फिटनेस से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप को फिट रखना, हेल्दी रखना, अच्छी चीज़ें खाना। संगीता जी, Thank you. थैंक यू सो मच।